السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، ان کی عظمت وہ سب سے مقدم ہے۔ جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے ان میں سب سے پہلے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کی شان اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ جن کو عزت احترام رب تعالیٰ خود دیتا ہے، تو اگر بندہ ان کا احترام اور عزت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرماتا ہے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور احترام میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرنے والا ایسا بندہ ہے جس کا اللہ دشمن ہے، وہ اللہ سے دشمنی لیتا ہے۔ اور جو بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، توہین کرتے ہیں، وہ آخرت میں دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ آئے ہم سب کچھ یہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، دیکھیں وہ لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام بیٹھتے تھے، اور وہ یہودی بھی آ کر بیٹھتے تھے جو منافق ہوتے تھے، اور احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرنے کی وجہ سے وہ ایک لفظ جو رائنا تھا اس کو بدل کر رائنا کہہ دیتے تھے، یعنی ہمارے بکریاں چرانے والا، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ جبکہ صحابہ کرام اس کو یہ سمجھتے تھے کہ کہنے والے شروع میں کہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آئی، اس کو ذرا دوبارہ فرمائیں، مہربانی فرمائیں، یہ بات تھی۔ یعنی اب اس رائنا لفظ کا مطلب یہ تھا کہ بھئی آپ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے ذرا اس کو دوبارہ فرمائیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ لیکن وہ جو یہودی آ کر منافق بیٹھتے تھے، وہ اس لفظ کو رائنا کو نا کو اوپر کھینچتے تھے، تو اس کا مطلب بن جاتا تھا چرواہا، یعنی چرانے والا ہمارے جانوروں کا۔ بے ادبی کی انتہا ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھا، عزت شان بڑھائی، حکم آیا، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ دیکھیں نا کتنی بات ہے، اور آگے فرمائے وللکافرین عذاب علیم۔ فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ یا ایہا الذین آمنوا، یہ سورہ بقرہ کے اندر 104 آیت میں موجود ہے، ہم انشاءاللہ جب اس پر جائیں گے تو اس کو بھی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولو، نہ کہو رائنا، رائنا کہنا ہی چھوڑ دو، کیونکہ ایسا لفظ جس کو اونچا نیچا کرنے سے یا زیر زبر کو لمبا کرنے سے بے ادبی بنتی ہے، آپ وہ لفظ کہو ہی نہ، بس اس لفظ کو ہی چھوڑ دو۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں بھی عام زندگی کے اندر ایک لفظ جس کے دو مطلب نکلتے ہیں وہ لفظ ہی کہنا چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جب بھی کوئی بات کریں، یا صحابہ کرام یا نیک لوگوں کی تعریف میں، ہمیں تو چاہیے کہ ایسا لفظ جس کے دو مطلب نکلتے ہیں وہ کہنا ہی نہیں ہے، بس ہمیشہ وہ لفظ کہنا ہے جس کا صرف وہ مطلب نکلتا ہے جو پازیٹیو ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، باادب ہے، بس۔ تو وہ لفظ ہی چھوڑ دو، ڈکشنری سے وہ لفظ ہی نکال دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ایسا لفظ جس چاہے وہ آرام سے کہیں، سکون سے کہیں، مطلب اچھا بنتا ہے، لیکن آپ اس کو جب وہ اس کو لمبا کرنے سے اس کا مطلب بھی غلط ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، آرام سے کہیں تو اس کا مطلب دوبارہ اس کو فرمائیں، لیکن اگر اب اس کو لمبا کر کے کہیں، نہ کر کے اس کو رائے نہ تو کہیں، تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ چرواہا۔ تو کتنا اللہ تعالیٰ نے ایسے لفظ کو ہی فرمایا کہ نکال ہی دو، ڈکشنری سے نکال دو۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانی سے، کتنا ادب و احترام دیکھیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہاں نہ صرف ہمیں حکم دیا بلکہ زبردستی حکم ہوا کہ اس کو چھوڑ دو، بالکل وہ لفظ ہی چھوڑ دو۔ تو فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولو، نہ کہا کرو۔ یہ لا تقولو یہ لفظ ہے نا، یہ صیغہ ہے جمع، اس کا حکم کا صیغہ ہے، اور حکم کس کو ہے؟ ایمان والوں کو، جن کے اندر ایمان ہے ان کو حکم ہے کہ ایسا لفظ جس کے مطلب دو نکلتے ہیں، جس میں ایک لفظ باادب والا مطلب ہو اور دوسرا بے ادب والا مطلب ہو، تو آپ اس لفظ کو استعمال ہی نہ کرو، تو آپ اس کو چھوڑ دو، بلکہ ایسا لفظ استعمال کرو جو باادب ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولو، نہ کہو
रायना, रायना लफ्ज कहो ही ना। वकूल उनजुरना, और कूलो का मतलब कहो, उनजुरना, उनजुर का मतलब नजर करम फरमाइए, ना का मतलब हम पर, उनजुरना हम पर नजर करम फरमाइए। बस यही कहेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बात जो अगर दोबारा पूछना चाहते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दोबारा बता देंगे। तो ये है कि वकूल उनजुरना, और उनजुरना कहा करें, उनजुरना यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रायना लफ्ज ही छोड़ दो, उसकी बजाय क्या लफ्ज कहो, उनजुरना, कि हम पर नजर करम फरमाइए, उनजुर नजर करम फरमाइए, ना हम पर नजर करम फरमाइए, ये लफ्ज बोला करो। वस्मऊ, और सुन लो। देखिए ना आप, कितना बड़ी बात है। आगे फरमाते हैं अल्लाह ताला, और सुन लो, वलिल काफिरीना, और जो काफिर हैं, अजाब अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। गोया ऐसे बंदे जो बेअदब हैं उनको काफिरीन में कहा गया है। अब देखें, बताएं क्या हालत है, और अजाब दर्दनाक उनको बताया गया है। ये बहुत बड़े सख्त आयत है। अदब हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बड़ी शान है। आगे देखें, ये सूरह बकरा में थी, सूरह अहज़ाब में देखते हैं अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग, यूज़ूना, यूज़ूना का मतलब ईज़ा देते हैं, ईज़ा देते हैं यूज़ूनल्लाह, हैं वो जो है ना ईज़ा देते हैं अल्लाह को। देखे ना, व रसूलहू, व रसूल, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह को ईज़ा देते हैं। ईज़ा का मतलब होता है तकलीफ। जो अल्लाह को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देते हैं, अरे जिस, इसका मतलब जो चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, वो अगर बंदा उसको पसंद नहीं करता, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी ऐसी बात को जो उनको प्यारी लगती है, हुक्म फरमाते हैं, बंदा उससे इग्नोर करता है, उसको छोड़ देता है, अपनी मर्जी करता है, तो फिर जो है इसका मतलब वो तकलीफ दे रहा है ना। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ से मोहब्बत करते हैं और आगे फरमाते तुम भी करो, तो बंदा कहता है नहीं जी कोई बात नहीं है, तो फिर वो ईज़ा तकलीफ ही हुई ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते हैं उस पर अमल ना करे, बंदा अपनी मर्जी करे, तकलीफ देना ही है ना। तो फिर अब इसका मतलब है वो तकलीफ दे रहा है किसको, अल्लाह को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो बंदे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देते हैं, लाअनहुमुल्लाहु, उन पर अल्लाह की लानत है, फिद दुनिया, दुनिया में, वल आखिरा, और आखरत में, वअद्दा लहुम अज़ाबम मुहीना, और अल्लाह ताला ने आखरत में उनके लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। अब गौर करें फिर, है ना जी, देखें लानत फरमाइए उस पर। इन लजीना, बेशक जो लोग, यूज़ून अल्लाह, जो तकलीफ़ देते हैं, अजियत देते हैं अल्लाह को, व रसूल हो, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लाअनहुमुल्लाह, अल्लाह ताला ने उन पर लानत रखी है, लानत कर दी है, फिद दुनिया, दुनिया में भी, वल आखिरा, आखरत में भी, वअद्दा लहुम अज़ाब मुहीना, और उनके लिए आखरत में अजाब जो है ना वो जिल्लत का तैयार कर रखा है। इसी तरह आगे देखें, सूरह हुजरात में देखें, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह हुजरात में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, अपनी आवाज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंचा ना करो। इसका मतलब क्या है, अब आजकल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ क्या होती है, ये कुरान पाक भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ है, और जो हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ है। जब कुरान और हदीस का बयान हो रहा हो तो उस वक्त अपनी बात नहीं करनी, वरना बेअदबी हो जाएगी, इसी में आ जाएंगे हम। और दूसरी, जहाँ पर कुरान और हदीस की बात हो रही है तो आप खामोशी से, हम सब खामोशी से उस बात को सुने, और उसके बाद बात करनी है करें, उससे पहले ना करें। और दूसरी बात यह है कि जो बात करने वाला है वो भी नहीं है कि वो कुरान और हदीस की बात करे तो ये नहीं है कि चीख चीख के बोले, नहीं, आराम से बोले, यानी इतना लहजा हो जिस तरह यानी कि समझ आ जाए दूसरों को। चीखना नहीं है, चीखना जैसे होता है, बात चीखते हैं और साथ वो कोई टेबल पड़ा होगा उसके थपकियाँ भी लगाते रहते हैं वो, और पता नहीं क्या क्या करते हैं, ये गलत तरीका है। अदब से बंदा बयान करे, जब कुरान पाक पढ़ा जाए आराम से पढ़े, और दूसरा उसको बयान करना है अदब से करे। और तीसरी बात यह है कि जो सुनने वाले हैं वो बाअदब तरीके से सुने, उस वक्त ना इशारा करें, ना बात करें, ना ख्याल करें, सिर्फ सारे ख्याल, सारे इशारे, सारी बातें उसी की तरफ मरकूज हो जाएं, है ना जी। तो ये बात है, ये हुक्म है कि आप, अब जो है ना ये है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म कुरान पाक की शक्ल में है, अल्फाज जो आपके हैं, और या हदीस की शक्ल में है। जब आप बंदा वो कहीं बयान हो रहा हो तो वो फिर सुने बंदा, उसके बाद जो है ना बात करे, लेकिन पहले ना करे। और बाद भी कोशिश करे कि हदीस और कुरान के बारे में बात करनी हो, अदब का लहजा इख्तियार करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तकूलू, ना कहो, राय नो,
ये दूसरी आयत है, ये वाली आयत जो हम पढ़ रहे थे, हुजरात, सूरह हुजरात वाली। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तरफाऊ, ऊंची आवाज ना करो, अस्वातकुम, अपनी आवाज़ों को ऊंचा ना करो। तरफाऊ का मतलब होता है ऊंचा करना, यानी आवाज़ ऊंची हो जाना, यानी ईमान वालों को हुक्म है। ला तरफाऊ अस्वातकुम, अपनी आवाज़ों को ऊंचा ना करो। फौका, ऊपर, सौतन नबी, सौत का मतलब आवाज़, नबी का मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंची आवाज़ तुम्हारी ना हो जाए। अल्लाह ताला ने ये फरमाया, वला तजहरू, और ना चिल्ला कर बोलो, बिल कौले, यानी ज़बान से चिल्ला कर ना कहो। और कजहर बादकुम लिबादिन, जिस तरह बाज बाज को चिल्लाते हैं, जिस तरह हम कहते हैं ना, किसी को बुलाते हैं या किसी बात करते हैं, ओ फलाने या ये या, ऊंचा, जैसे बुलाते हैं किसी को ऊंचा करके, या किसी को आवाज़ देते हैं या ऊंचा बोलते हैं, ऐसे चिल्ला चिल्ला कर। हुक्म आया कि चिल्ला चिल्ला कर भी नहीं बोलना। आपने जब उनका नाम लेना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाअदब तरीके से लेना है। अल्लाह ने फरमाया क्या होगा, अन तहबता, ऐसा ना हो कि तुम्हारे, तहबता का मतलब होता है ज़ाय हो जाए, गर्क हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। आमालकुम, तुम्हारे आमाल, ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। वह अन तुम, और तुम्हें ला तशउरून, इसका शऊर ही ना हो, यानी तुम्हें पता ही ना हो, तुम्हारे जो अमाल जो नेक किए थे वो भी ख़त्म। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदब नहीं करता, आवाज़ में भी, यानी उनकी अदब नहीं है, चिल्ला चिल्ला कर बोलना और आवाज़ निकालना। और जो लोग देखें ना जी, हम सब जो हैं, जो ये समझते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उनकी शान जो है इतनी ज़्यादा है कि बयान से बाहर है, जो कि अल्लाह ख़ुद जानता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। हम लोग तो बस इतना जानते हैं जितना हमें इल्म मिलता रहता है, बस। बाकी हम कभी शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बंदा बयान कर सकता है, ना बंदे के बस में है। अगर कोई बंदा कहता है मैं बयान कर सकता हूँ, तो मेरा ख्याल है कि वो मुसलमान मोमिन नहीं है, क्योंकि ईमान वाला जो होता है वो शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारी अप्रोच से, हमारी उससे बाहर है, यानी ये अल्लाह जानता है। हम तो बस इतना जानते हैं जितना मालूम होता है, बस वो बयान, हम स्टूडेंट हैं, समझ रहे हैं, तालिब इल्म हैं, बस जितना मालूम होता है वो आगे बता दो। यही हुक्म है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अल्लाह का भी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया हमें वही मानना है। यहाँ पर हुक्म आया कि ए ईमान वालों, अपनी आवाज़ों को ऊंचा ना करो और आप चिल्लाकर भी ना बोलो। और अगर आपने चिल्लाकर बोला, अपनी आवाज़ों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंचा रखा, तो इसका मतलब है आपके सारे आमाल जो नेक किए थे, जो सब कुछ बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, कख नहीं बचा। आपको शऊर ही नहीं होगा उसका, आपको ख्याल नहीं होगा, लेकिन अमाल नामा खाली हो जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, ए ईमान वालो, अपनी आवाज़ों को ऊंचा ना करो, फ़ौका साथ सौतन नबी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से। वला तजहरू लहू, वला तजहरू लहू बिलकौली कजहर बारिकुम लिबादिन, जिस तरह के तुम बात करते हो, बुलाते हो, बुला बुला कर, चीख कर बुलाते हो दूसरों को, तो इस तरह से बाज बाज को बुलाते हैं, तो इस तरह चीख कर बात जैसे करते हैं, किसी को नाम से बुलाना होता है या ऐसे ऊंची ऊंची आवाज़ में, तो वो आप इस तरह की ऊंची आवाज़ ना निकालो। ऐसा ना हो कि अन तहबत आमालकुम, ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल ही ज़ाय हो जाएं, वन तुम ला ताशउरून, और तुम्हें इसका शऊर तक ना हो। बस ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई बंदा कुरान पाक पढ़ रहा है या कुरान पाक का बयान कर रहा है या हदीस बयान कर रहा है, तो आप लोगों को या हम सब को चाहिए कि उस वक्त अपनी बोले ना बंदा, पहली तो बात यह है कि आवाज़ ही ना निकाले। और दूसरी बात यह है कि वो उस पर बात करनी है, तो वो जब बात वो पूरी कर ले, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जो बात है पहुंचा ले, उसके बाद बात की जाए। तो ये ज़्यादा तरीका, और बात भी नरम और अदब अदब से करनी चाहिए, बेहतरीन तरीका यही है। और यहाँ पर यह भी सबक मिलता है, जिस तरह हम कुरान पाक या दीन की बात या ऐसे हम वो टेप रिकॉर्डर चला लेते हैं, जैसे अब गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, और साथ बातें भी करते जाते हैं, और अपनी, इसका मतलब है आपने तो वो सिर्फ बस वैसे शो करने के लिए लगाया हुआ है। तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें जो हैं वो आपके लिए सिर्फ बस शोबाजी और दिखावा है, और आपकी अपनी बातें ज़्यादा अहम हैं जो कि आप कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी बेअदबी है सारी। इसलिए अदब को हर जगह पर इसका ख्याल रखना है, और अदब बहुत अहम है। तो इसी चीज़ को, अगर बेअदब बनेंगे तो सारे अमाल जो नेक किए थे वो भी तबाह हो जाएंगे। अब इसी तरह देखें, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह करता है, तो अल्लाह ताला ने उनको फरमाया है कि ये अल्लाह ताला जो है उसका भी दुश्मन है। देखें ना, मन काना, आगे देखें सूरत बकरा में, मन काना अदुवन लिल्लाही,
जो कोई दुश्मन हो, मन काना अदुवन लिल्लाही, जो अदू का मतलब होता है दुश्मन, लिल्लाही अल्लाह का, जो अल्लाह का दुश्मन है, वह मलाइकातहू और जो फरिश्तों का दुश्मन है, वह रसूली और जो रसूलों का दुश्मन है, वह जिब्राइला और जिब्रील का जो दुश्मन है, वह मीकाइला और जो मीकाइल का दुश्मन है, फ़इन्नल्लाह पस अल्लाह ताला अदुवन लिल काफिरीन, पस ऐसे काफिरों का अल्लाह ही दुश्मन है। तो फिर आप देखें कि जो बंदा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर तो ये बात आ गई कि हमने जो अल्लाह के फरिश्ते हैं उनका भी अदब रखना है, अल्लाह के रसूलों का अदब रखना है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का अदब रखना है, मीकाईल अलैहिस्सलाम का अदब रखना है। तो ये सब जो है बाअदब हस्तियाँ हैं, तो हमने उनका ख्याल रखना है कि हमसे कोई ऐसी बात ना हो। तो ये जो, वरना जो दूसरे जो यहूदी और ईसाई और काफिर जो दूसरे लोग हैं मुशरिक, वो ऐसी बातें करते थे, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए भी बयान फरमा दिया। और ये कुरान पाक अब सब के लिए है ना, तो इसलिए यहाँ पर हमें भी हुक्म यही है कि अगर कोई बंदा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखे ना अल्लाह ताला ने फरमा दिया, जो फरिश्तों का, रसूलों का, जिब्राइल मीकाइल का दुश्मन होगा, उनकी इज्जत नहीं करेगा, तो वो भी उन्हीं में शामिल होगा, तो अल्लाह उसका दुश्मन होगा। इसी तरह आप देखें कि इस सूरह तौबा में है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वल्लजीना योजूना रसूल अल्लाह, वल्लजीना और जो लोग, योजूना का मतलब ईज़ा देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है ना। देखे ना कितनी बात है कि अब हमें सोचना चाहिए, जब भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आए तो बाअदब तरीके से सुने और एहतराम करें, और आगे लोगों को एहतराम का दर्स दें। और नाम हमने अगर किसी के साथ ज़्यादती और जुल्म कभी नहीं करना, ना कोई ऐसी बात करनी है। अगर कोई बात किसी को करनी भी है तो एहतराम और अदब से करें, क्योंकि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है वो बड़े एहतराम और अदब की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने दुश्मनों से, वो अब्दुल्ला बिन अबी कितना बड़ा दुश्मन था, तो इतना उसके साथ वो जब बोलते थे तो इतना इखलाक, हुस्न इखलाक से बोलते थे जिसकी इंतहा ही नहीं है। तो ये जो है ना, इसलिए हमें अगर कोई बंदा जिस तरह का भी हो, तो हमें उसके साथ अदब एहतराम से बात करनी है। और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जब हो तो एहतराम और अदब का ख्याल रखना है। और अगर कोई बंदा ऐसा करता है जो एहतराम और अदब के ख़िलाफ़ करता है, उसको बता देना है कि तूने वो काम किया है, तेरे तो नेक आमाल भी ख़त्म हो जाएंगे, तौबा कर, इस्तग़फ़ार कर, माफ़ी मांग, और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। उसके बाद फिर दोबारा कभी कोई ऐसा बात ना कर, इसलिए कि तौबा इस्तग़फ़ार ही बस एक चीज़ है। और हम भी अक्सर तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान है, गलती गलती में, बात बात में कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे कोई बेअदबी का पहलू निकल आता है। तो इसलिए हमें भी हर वक्त तौबा इस्तग़फ़ार को सामने रखना है, लेकिन हमें हर वक्त ख्याल रखना है कि हमें, और दुआ भी मांगनी है, या अल्लाह अपना अदब अता फरमा, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब अता फरमा। और जो तेरा और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, पैरोकार हैं, नेक लोग हैं, सहाबा कराम हैं रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, या औलिया कराम हैं, या जो भी परहेजगार हैं, जो तेरे और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, या अल्लाह उनका भी अदब करने वाला बना। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, आमीन।